Good morning, student. I am Kruti Prajapati, your English teacher. Today I am going to teach you English grammar, chapter 7, the use of adverb. First of all, I will say the difference between what is the adjective and what is the adverb. So an adjective tells us more about noun and adverb tells us more about a verb. मतलब जो adjective है वो noun के बारे में noun को modify करता है और जो adverb है वो verb को modify करता है. For example, here are the two examples. You have to find out what is there is the same common word slow and slowly, but in the two sentence first is an adjective and another word is the adverb. For example, he is a slow driver. तो वो ड्राइवर है पर कैसा स्लो, मतलब ड्राइवर नाउन है तो वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. तो हियर द स्लो इज द एडजेक्टिव ऑफ दिस सेंटेंस एंड अनदर एग्जांपल इज ही ड्राइव स्लोली, मीन्स वो ड्राइव कर रहा है पर कैसे स्लोली. तो ये जो ड्राइव वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है. तो इन दिस सेंटेंस स्लोली इज अ एडजेक्टिव. I hope you can easily understand the difference between adjective and adverb. Now there are the four main types of adverbs in this lesson. I will also explain the different type of adverbs and their use. Which types of adverbs are there? Adverb of manner, adverb of time, adverb of place and adverb of frequency. There are the some adverb you can easily find out the which type of adverb. Suppose in a sentence the word use easily, slowly, quickly, happily and carefully, and this is called the adverb of manners. And if the sentence the word is today, tonight, tomorrow, yesterday, last night, and that is called the adverb of time. Why adverb of time? Because they denied the time, वो time को modify कर रहा है, so that is why it is the adverb of time. Then if the sentence the word is here, there, at Delhi, to school, in the sky, in the sky, for example, these words are also called the adverb of place. Suppose in a sentence there is some word often, never, always, usually and sometimes, and in this sentence that is these types of adverb is called adverb of frequency. अब एडवर्ब का प्लेसमेंट सेंटेंस में कैसे होता है, मतलब प्रॉपर कौन सी जगह पे एडवर्ब हो सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लेस एन एडवर्ब एट द राइट प्लेस इन अ सेंटेंस. ऑलवेज कीप इन माइंड रूल्स गिवन बिलो. मतलब सेंटेंस के राइट साइड होता है और ये रूल्स आपको माइंड में रखना है कि एन एडवर्ब ऑफ मैनर, फर्स्ट विच टाइप वी डिस्कस, एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर शुड बी प्लेस after the object. If there is no object, it should be placed after the verb. Means which we place adverb of manner used if the adverb of manner is after the object. If any sentence that object is not there, मतलब कि किसी भी sentence में object नहीं है, तो the adverb of manner is used after the verb. For example, he spoke clearly. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है. he is a subject, spoke is a verb and clearly is a adjective. तो if any sentence there is no object, तो adverb of manner कहाँ पे आएगा, after the verb. मतलब spoke के बाद है ना clearly. Then another sentence is she did her work केयरफुली, मतलब कि शी डिड हर वर्क. तो उसके बाद क्या है, हर वर्क के बाद है ये जो केयरफुली, मतलब उसने अपना काम कैसे किया, केयरफुली, मतलब कि अच्छी तरीके से. नाउ आई विल एक्सप्लेन अवर अनदर टाइप्स ऑफ एडवर्ब दैट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. That can be placed at the beginning or the end of the sentence. In this type of adverbs is modify the time, मतलब ये time को modify करता है और ये जो adverb है क्या तो sentence के starting में या फिर ending में आता है. For example, he went to Delhi yesterday. Here are the adverb of manner is yesterday. So other sentence, this sentence is also written by yesterday he went to Delhi. It means adverb of time is placed before the sentence या after the sentence. I am changing my school this year. और इसका और भी लिख सकते हैं this year I am changing my school. Okay student, now I am also explain our another types of adverb, that is an adverb of place. Adverb of place should be placed after the object. If there is no object,
it should be placed after the verb. इट मीन से दैट एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो प्लेस को मॉडिफाई करता है, वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है. अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आफ्टर दी वर्ब मतलब वर्ब के बाद आता है. फॉर एग्जाम्पल दे वर प्लेइंग हियर, हियर आर द वर्ड एंड प्लेइंग इज द वर्ब एंड द हियर इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस. एंड अनदर इज शी वॉज सिंगिंग इन हर रूम, यहाँ पे शी इज द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वॉज सिंगिंग इन हर रूम, तो वो कौन सी जगह पे गा रही है, इन हर रूम मतलब कि उसके रूम में. और उसी सेंटेंस के बाद दूसरा है शी वॉज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग इन हर रूम, मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है अ सैड सॉन्ग. यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इन हर रूम जो एडवर्ब है आफ्टर दी वर्ब है, और यहाँ पे अ सैड सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो एडवर्ब है इन हर रूम ये आफ्टर दी ऑब्जेक्ट है. Now I will explain our another types of adverb, that is adverb of frequency. So what is called adverb of frequency? Adverb of frequency is placed after is, mr, was, were or before the main verb. मतलब adverb of frequency कब आएगा? Suppose in sentence is, mr या फिर was, were हो तो उसके बाद या फिर कोई भी मेन वर्ब हो उसके आफ्टर मतलब उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा. जैसे कि बॉब इज ऑलवेज लेट, हियर आर द इज द इज एमआर के हिसाब से इज है और उसके बाद जो ये ऑलवेज है दैट इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. दैट अनदर सेंटेंस इज ही ऑफन कम्स टू मी फॉर हेल्प, मतलब वो कई बार मेरी हेल्प के लिए भी आता है. वी समटाइम्स हैव एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब कई बार हम ब्रेकफास्ट में एग भी लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो मेन वर्ब है. उसके बाद फॉर द ब्रेक समटाइम्स वो क्या हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ मोस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर आर फॉर्म बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव, मतलब कि कई एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे हैं कि क्या होता है उसके एडजेक्टिव के पीछे इफ आई पुट ly एंड दैट इज मेक द एडवर्ब, मतलब कि कोई एडजेक्टिव कई एडजेक्टिव एडवर्ब ऑफ मैनर के ऐसे है कि अगर मैं उसके पीछे ly लगा दूँ तो इट्स मीन्स वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर. क्लियर का क्लियरली, हैप्पी का हैप्पीली, इजी का इजीली. उसी तरह से बट नॉट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड द एडवर्ब फॉर्म, मतलब कई बार जो एडजेक्टिव्स होते हैं और वो एडवर्ब दोनों सेम नहीं हो सकते. जैसे कि आगे के एग्जाम्पल में हमने देखा कि इफ एनी एडजेक्टिव वी पुट ly इट मेक अ एडवर्ब, बट सम एग्जाम्पल्स आर दैट is not the adjective and their forms. Suppose good, तो गुड है वो एडजेक्टिव के तौर पे होगा और उसी को मुझे वही सेंटेंस को बनाना हो तो मैं गुडिंग नहीं करूँगी बट मैं उसको वेल लिखूँगी, तब वो जाके एडवर्ब हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पे जो गुड है वो प्लेयर को मॉडिफाई कर रहा है तो गुड इज अ एडजेक्टिव एंड ही प्लेड वेल, तो वो प्लेड मतलब कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वेल इज अ एडवर्ब. हियर आर द also the examples of adjectives and different form of adverb. Now we will discuss order of adverbs. तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स के बारे में भी बात करेंगे. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम बिफोर द मेन वर्ब और आफ्टर द इज, एमआर एंड वाज वर्ब. सपोज मेरे पास एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, तो मैं उसको कहाँ पे पुट डाउन करूँगी सेंटेंस के अंदर. अगर इज, एमआर है तो बिफोर द मेन वर्ब, और अरे इज, एमआर है तो आफ्टर द इज, एमआर या वाज वर्ब, और इज, एमआर या वाज वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के बिफोर मतलब मेन वर्ब के पहले मैं उसको पुट डाउन करूँगी. यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटेंस द नॉर्मल पोजिशन ऑफ अदर एडवर्ब इज द एंड ऑफ द सेंटेंस. यहाँ पे देख सकते हैं आप इजीली. ही स्पोक वेल एट द मीटिंग दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे वेल, बिटरली, एट द मीटिंग, इन हर रूम, मतलब कि इसी तरीके से आप प्रॉपर वे में एडवर्ब ऑफ ऑर्डर को प्रॉपरली कर सकते हैं. ओके, नाउ आई एम ऑल्सो गिव सम एग्जाम्पल थ्रू द बोर्ड. Now I explain our textbook exercise on the page number 50. Our first exercise is
वर्क विथ योर पार्टनर एंड आस्क ईच अदर हाउ यू डू दिस थिंग्स एंड यू कैन यूज द गिवन एडवर्ब इन योर आंसर। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चंस दिया है और आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे कि रन, रीड, वॉक, स्पेल, राइट, ईट, सिंग, ड्रॉ, स्विम एंड डांस। तो आपको हाउ डू यू से क्वेश्चन पूछना है और सामने वाला आपका जो पार्टनर है वो आपको उसके बारे में आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल रन, सपोज यहाँ पे पहले रन है, तो अगर मुझे उसका सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगी, हाउ डू यू रन। मतलब कि एक पार्टनर है अपने दूसरे पार्टनर को क्वेश्चन पूछेगा, तो किस तरीके से पूछेगा, हाउ डू यू रन। तो उसके बिहाफ में जो सेकंड वाला पार्टनर है क्या आंसर देगा। यहाँ पे आपके पास एडजेक्टिव है फॉल, वेल, बैडली, इजीली, स्लोली एंड फास्ट। तो क्या होगा, हाउ डू यू रन, कि आप कैसे दौड़ते हो। तो मैं क्या लिखूँगा, आई डोंट रन फास्टली, आई रन स्लोली। उसी तरीके से अगर सपोज और दूसरा कोई है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं दूसरा राइट। जैसे रन है ऐसे अनदर वर्ब है राइट। तो अगर इसके बारे में कोई पार्टनर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, हाउ डू यू राइट, मतलब आप कैसे लिखते हो। तो अगर ऐसा नहीं कि हर बार आपको नेगेटिव में ही आंसर देना है, अगर आपको पॉजिटिव में आंसर है देना है तो आप भी दे सकते हो। तो हम लिखेंगे आई राइट स्लोली, या फिर उसके अलावा वो भी लिख सकते हैं कि आई डोंट राइट बैडली। ओके, तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगी कि आई राइट स्लोली, मतलब ब्रैकेट में आपको जितने भी वर्ड दिए, एडवर्ब दिए, आपको यूज़ करके इस तरीके से सारे क्वेश्चन बनाने हैं अपने आप से। नाउ आवर सेकंड एक्सरसाइज इज दैट वर्क विथ योर पार्टनर एंड आस्क ईच अदर ऑफन यू डिड दिस थिंग्स लास्ट मंथ। मतलब कि यहाँ पे आपको दो ब्रैकेट दिए हैं, तो आपको एक क्वेश्चन के तौर पे देना है, फिर उसका आंसर आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे है वॉच टीवी। तो वॉच टीवी का क्या बनाएगा, हाउ ऑफन डिड यू वॉच टीवी लास्ट मंथ। ओके, तो फिर यहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स दिए, इसमें से आप यूज करके बना सकते हैं। आई वॉच टीवी डे एवरी डे लास्ट मंथ। ओके, लास्ट मंथ से मैं हर रोज टीवी देख रहा हूँ। उसके बाद है प्ले क्रिकेट। अब प्ले क्रिकेट का अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या क्वेश्चन बनाऊंगी, हाउ ऑफन डिड यू प्ले क्रिकेट लास्ट मंथ। हाउ ऑफन डिड यू प्ले क्रिकेट लास्ट मंथ। तो अगर उसका मुझे आंसर देना होगा तो मैं क्या लिखूंगी कि आई प्लेड क्रिकेट
cricket sometimes last month. I played. प्ले का प्लेड क्यों हो गया वो आपको पता है कि यहाँ पे डीड है, अगर डीड रिमूव हो गया तो फिर जो वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म आएगा. तो आई प्लेड क्रिकेट sometime लास्ट मंथ. मतलब लास्ट मंथ में मैंने कोई ही टाइम पे कोई ही बार क्रिकेट खेला. इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप से क्वेश्चन बनाना है ऑफन, और ये लास्ट मंथ को यूज़ करके और इसमें ब्रैकेट में जो एडजेक्टिव दिया है उसकी हेल्प से ये सब आपको करना है. नाउ आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन अवर थर्ड एक्सरसाइज विच इज़ वर्क विथ योर पार्टनर, आस्क ईच अदर वेयर यू डू दिस थिंग्स नॉर्मली. मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे प्लेस का है, वेयर वो प्लेस मॉडिफाई करता है. तो आपको क्वेश्चन पूछना है कि आप ये कहाँ से लाए, तो उसके आंसर में आपका पार्टनर वो जो पर्टिकुलर प्लेस होगा जहाँ से ये चीज़ मिलती होगी वो इस ब्रैकेट के टेबल के हिसाब से आपको आंसर देगा. फॉर एग्जाम्पल वॉच टीवी. हियर आर द सम एग्जाम्पल डन फॉर यू एंड दैट इज वॉच टीवी. वॉच टीवी, तो वेयर डू यू वॉच टीवी नॉर्मली, तो क्या होगा, आई वॉच टीवी इन माई रूम, आई वॉच टीवी इन माई ड्राइंग रूम. ओके. उसके बाद एक हमारा अनदर वर्ब है बाय ब्रेड. मतलब कि ब्रेड की बात की है, तो ब्रेड कहाँ से बाय करोगे, कहाँ से खरीदोगे. तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाऊंगी, वेयर डू यू बाय ब्रेड. तो आंसर क्या होगा, आई बाय ब्रेड एट, क्या आएगा, एट द बेकर्स. मतलब बेकर्स के बाद ही मेकर्स के यहाँ पे ही ब्रेड मिलती है, तो क्या होगा, आई बाय ब्रेड एट द बेकर्स. ओके. उसी तरीके से आपको दूसरा सेंटेंस है ईट ब्रेकफास्ट. तो क्या हम बनाओगे कि वेयर डू यू ईट ब्रेकफास्ट नॉर्मली. तो क्या लिखेंगे हम आंसर, आई ईट ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल इन द किचन. कुछ भी आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे जो दो टेबल्स दिए हैं टेक्स्ट बुक में आपको उसी की हेल्प लेके इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने हैं. उसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है फोर्थ वाली वो हमको नहीं करनी है, बट ऑन द पेज नंबर ऑफ 52 दिए है देयर इज अनदर एक्सरसाइज दैट इज underline the adverb in each group of word and rearrange the word and make the correct sentence. यहाँ पे आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है, आपको उसमें से एडजेक्टिव को फाइंड आउट, एडवर्ब को फाइंड आउट करना है और उस सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में, मतलब मीनिंगफुल फॉर्म में सेंटेंस उसको करना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक है गो टू बेड I will tonight early. तो यहाँ पे पहले मैं ये देखती हूँ कि एडवर्ब कौन सा है, tonight. तो सेंटेंस क्या बनेगा, I will go to bed early tonight. I will go to bed
आई विल गो टू बेड अर्ली टुनाइट अथवा टुनाइट अर्ली. तो आई विल गो टू बेड इसी तरीके से आपको बाकी के सेंटेंस है उसको भी प्रॉपर करेक्ट फॉर्म में और साथ ही साथ उसमें जो भी एडवर्ब्स है वो आपको अंडरलाइन करके फिर वो सेंटेंस को प्रॉपर फॉर्म में लिखना है. आई विल ऑल्सो गिव अ PDF फॉर दी ऑल एक्सरसाइज विद द सॉल्यूशन. थैंक यू.